Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister and the Council of Ministers, officials present on and off the dais, our friends from media, a very warm welcome to all of you in this post-budget press conference. Firstly, I would like to request Principal Secretary Finance to come for his opening remarks. Good afternoon to everyone. Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, Advisor to Honorable Chief Minister, respected Additional Chief Secretary to Chief Minister, all the senior administrative secretaries, heads of department, and my colleagues from electronic media, print media. Let me first, on behalf of Finance Department, welcome all the dignitaries and specifically the colleagues from media who have taken pains to come to the venue for attending this post-budget press briefing. As you are aware that this particular financial year 2025-26 has been quite challenging for Jammu and Kashmir. Both the Pahalgam attack and its aftermath, also the recent floods in Jammu had put substantial stress on economy of J&K. And in that background, this budget presented by Honorable Chief Minister is specifically people-centric, and it in a way responds to the fiscal stress that has occurred because of these two challenges before us. As you are able to see, the overall budget outlay is 1,13,767 crores, and out of that, the capital outlay is 33,000 crores, 127. It marks a substantial jump in terms of 3,000 crores over past year. The jump is mainly on account of, as Honorable Chief Minister referred in his speech, on account of the inclusion of J&K in SASTI. And under this program, till now, because J&K, all the departments have taken maximum efforts to accelerate their respective projects, till now we have received 3,200 crores. So it's a massive jump within 1 year. If you look at many other states of our size, they are still at around 700, 800 crores. But Jammu Kashmir has already reached 3,200 crores in terms of receipt. That's a remarkable achievement. In terms of administrative sectors of this particular budget, the administrative sector, which covers GAD and other departments, the outlay is reduced from 1490 crores to 964 crores. The reduction is mainly on account of J&K Police and Home Department, because that burden is now no longer on our shoulders. In infrastructure sector, the outlay has increased from 10,300 crores to 11,300 crores, major jump of 11,000 or 1,000 crores. Even within that, power department is slightly on lower side because we have paid all the equity that was due on part of J&K in current year itself. So no equity is to be paid in the next financial year. Then social sector, the outlay is 4,665 crores. Economic sector, the outlay has been increased from 6,200 crores to 6,518 crores, especially for agriculture, horticulture, etc. And then finally for the economic sector, the finance sector, the outlay has increased from 7,700 crores to 9,600 crores, mainly on account of higher repayments that we have. The special welfare initiatives, the major ones which have already been announced by Honorable Chief Minister in his budget, relate to the financial support to the AAY families in terms of 6 free LPG cylinders per year. Second is the development of 2 emergency and trauma hospitals at Puri and Punch. Extension of free public transport services on smart city buses and JKRTC buses from women, and now it will be covering all the differently abled persons. The budget also includes sponsorship for around 6,000 orphans who are under non-institutional care. So providing the financial support of ₹4,000 per month. And the major announcement of ensuring free education for all the students from AAY families, so that economic hardship does not remain an obstacle before them and they are able to move in life rapidly. So providing free education to
all AUI students in class 9 to 12 and also in colleges. So these are some of the major initiatives. In detail, there are almost 32 major initiatives which Honorable Chief Minister announced in his budget speech. These are covered in the documents that we have provided to you. I will not go into the details of all the 32 major initiatives which are there because those are already there, and also because this day actually belongs to Honorable Chief Minister as Finance Minister, and so I will like to be brief. He has, over the past several months, toured nook and corner of J&K, listened to people, and tried to accelerate all the developmental works across J&K. He has pursued the union government relentlessly and ensured maximum funds come to J&K for development. Specifically for this budget, he has ensured that wide-ranging consultations are undertaken with all the stakeholders and ensuring that the budget responds to the concerns expressed in those consultations. And he had also ensured that there is a fine balance between the fiscal prudence and the welfare measures which should be ensured to respond to these challenges. With that background, I will now request Honorable Chief Minister to speak about budget priorities and give his initial kind remarks. And at the end, again, I welcome all the dignitaries and all my friends from media. Thank you. सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि जितना बोलना था बजट के मुताल्लिक वो हाउस के अंदर मैं बोल चुका हूं। मैं बजट के मुताल्लिक बोलने से पहले बिलखसूस अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए तमाम अफसरों को इस बजट की कामयाबी पे मुबारकबाद और शुक्रिया पेश करना चाहूंगा। उन्होंने वाकई इसकी तैयारी में बहुत मेहनत की है और उसके साथ साथ महकमों को जिस तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेरे साथियों ने संभाला, इन सबों की कोशिशों का नतीजा है कि हम इस मौके पे पहुंचे हैं। जैसे संतोष वैद्य साहब ने कहा, तमाम मुश्किलात के बावजूद और जम्मू कश्मीर के कमजोर माली हालत के बावजूद हुकूमत की मुकम्मल कोशिश रही है कि सबसे जरूरतमंद लोगों को हुकूमत की तरफ से एक राहत मिले। कोई बजट अपने आप में एक आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये एक सीरीज रहता है हुकूमत की तरफ से। ये बजट भी इकलौता एक अपने आप में डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको आपको पिछले साल के बजट के साथ लेके चलना होगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक सीरीज में जो है मेजर्स लेती है और इम्प्लीमेंट करती है। तो जो वेलफेयर, जो पीपल फ्रेंडली अप्रोच हमने पिछले साल अपने बजट के दौरान उसकी बुनियाद डाली, उस बुनियाद पे अब आहिस्ता आहिस्ता हमने इमारत खड़ी करनी शुरू की। लेकिन एक जिम्मेदार हुकूमत होने के नाते ऐसा भी नहीं है कि हम अपने इलेक्शन में किए हुए वादों को एक ही दिन में पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर के खजाने पे बहुत ज्यादा बोझ डालें या बहुत ज्यादा कर्जा उठाएं या और पैसा कमाने के लिए हम नए नए तरीके अपनाएं। कोशिश की कि जितना है उसी का हम सही इस्तेमाल करें, थोड़ा सा और कमाई अपनी बढ़ाएं, थोड़े से जो हमारे जहां जहां नुकसान है खासकर बिजली में, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जो हमारे लॉसेस हैं उनको कम किया जाए, जो हमारे रेवेन्यू रियलाइजेशन है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि बचा हुआ पैसा जो है वो लोगों के राहत के लिए इस्तेमाल हो। इस साल
स्टेट असिस्टेंस, सेंट्रल असिस्टेंस, ये सैस्की का जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये जो जम्मू कश्मीर पे इस साल से लागू हुआ, जिसके लिए मैं मरकज की हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, उससे भी हमें कुछ नए मौके मिले लोगों की खिदमत करने के। लेकिन जैसे मैंने बजट के दौरान कहा और आपसे फिर कहा, ये एक सिलसिला है। सिलसिले में पहली जो उसकी शुरुआत पिछले साल हुई, उसको हमने आगे बढ़ाया और जैसे जैसे हुकूमत की कार्रवाई चलती रहेगी हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शुरू में इतना ही कहते हुए अब मैं Please identify yourself, your name of your organization before asking a question. Please keep your question to brief so that we can accommodate a large number. Yes, so we can start. Yeah. कुमार साहब, मेरा नाम अजय है, मैं एबीपी न्यूज से हूँ। आपने असेंबली में भी अपनी स्पीचेस में रिपीटेडली ये कहा है कि जो पिछला साल रहा है आपके लिए चैलेंजिंग रहा है। मैं सर आपसे सिर्फ एक जवाब चाहता हूँ कि चीफ वो चली गई और उस हमले ने दो मुल्कों के दरमियान एक जंग की सूरत पैदा हुई। उस तमाम अनसर्टेनिटी के माहौल में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है हमारी इकोनॉमी का जहां पे हमें धक्का ना पहुंचा हो। आप हॉस्पिटैलिटी देखिए, आप इंडस्ट्री देखिए, आप सर्विस सेक्टर देखिए, जिस भी सेक्टर को आप देखें तो जो हम उम्मीद लगाए बैठे थे पिछले पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन बिलखसूस जो जम्मू के कुछ इलाकों में बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ वो भी हमारे लिए एक मुश्किल दौर रहा। उसमें जो मरकज ने हाल ही में 1430 करोड़ का एक पैकेज सास्की के तहत परमानेंट रिकंस्ट्रक्शन के लिए अब जम्मू कश्मीर के लिए ऐलान किया है। अब उन पैसों का सही इस्तेमाल करके हम यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का सिलसिला जो है उसको ठीक ठाक आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये दो बड़े चैलेंजेस थे हमारे लिए। उम्मीद करते हैं क्योंकि पिछले साल जब हम इसी तरह इसी हॉल में पोस्ट बजट आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो माहौल अलग ही था। उस वक्त ना पहलगाम का किसी ने सोचा था तो ना फ्लड्स का। अब इस साल हमारी उम्मीद है कि ये साल अगर हमें ठीक ठाक मिल जाए तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को हम एक स्टेबल और एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे जो है उसको ले जाने में हम कामयाब हो जाएंगे। सर, मैं रजत बोल रहा हूँ जी न्यूज से। दो सवाल हैं सर। पहला ये कि कई सारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार ने जो इंडस वाटर ट्रीटी अभियान पर रखी है उससे कहीं ना कहीं सरकार को फायदा हुआ है और कई सारे जो प्रोजेक्ट डिले होता था या जो फंड्स है उसकी कमी होती या एक्सीड हो जाता था एक्सपेंडिचर, उसका जो है वो फायदा कहीं ना कहीं सरकार को मिला है उसे एमबीएस पर रखने में। दूसरा सवाल सर, कैन आई फिनिश द फर्स्ट वन? अगर हो पकलडुल हो, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। उनके स्कोप को, उनके डिजाइन को, उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इंडस वाटर ट्रीटी के एबियंस में रखने से इन प्रोजेक्ट्स में जनरेशन कैपेसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। आगे जाके हम जो नए प्रोजेक्ट्स अगर बनाने जाएंगे उनमें अगर इंडस वाटर ट्रीटी का जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे अगर वो ना रहे तो जरूर आगे जाके हमें फायदा मिल सकता है। हाल ही में मतलब हमारी ये सोच है और ये कोशिश है क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स को बनते बनते बहुत टाइम लगता है। कम अरसे में हम दो चीजों पे फायदा फौरी तौर हासिल कर सकते हैं। एक, अगर वुलर के पास सोपोर में तुलबुल नेविगेशन बैराज बने जिससे कि झेलम में हम पानी जो है और ज्यादा रख पाए, उससे दो फायदे हैं हमें। एक तो झेलम को हम नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, वुलर को हम बचा पाएंगे और डाउन स्ट्रीम जितने भी हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं लोअर झेलम, उड़ी 1, उड़ी 2, इनमें जनरेशन कैपेसिटी जो है हमारी बढ़ जाएगी। ये एक। और दूसरा, अगर अखनूर के पास पानी हम चिनाब से निकाल के जम्मू शहर को सप्लाई करना शुरू करें तो जम्मू में जो पानी की किल्लत रहती है उसको हम दूर कर पाएंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए हमें थोड़ी सी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ता था। अब सास्की के तहत ये इक्विटी कंट्रीब्यूशन जो है जम्मू कश्मीर की तरफ से हम न सिर्फ वक्त पे बल्कि इस बार वक्त से आगे
इसलिए अगले साल के लिए हमने कोई प्रोविजन रखा ही नहीं, क्योंकि अगले साल का ये इक्विटी कंट्रीब्यूशन हमने इस साल निपटा लिया है। तो अगर फिलहाल हमें पावर प्रोजेक्ट्स में किसी चीज का फायदा हुआ, वो सास्की का हुआ है, आगे जाके इंडस वाटर ट्रीटी का हो, ये हमारी उम्मीद है। सर छोटा सा दूसरा सवाल था कि कल आपने भले ही मजाकिया अंदाज में पर कांग्रेस को ये कहा कि कई बार जो है वो जरूर वो आनाकानी करते हैं केंद्र सरकार की जब आप थैंक यू करते हैं। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं अड़चन बनती है आपकी सरकार के लिए कि आप असिस्टेंस मांगे या आगे कोई बन सकती है? मुझे बचपन में कुछ सिखाया ना गया हो, लेकिन तमीज जरूर सिखाई गई है, और मैं बदतमीजी नहीं करूंगा। अगर जम्मू कश्मीर के लिए किसी ने अच्छा किया, मैं शुक्रिया करूंगा। मैं बार बार कई चीजों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का शुक्रिया करता हूँ। जब मैं 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हवाले से बात करता हूँ, उनका शुक्रिया करता हूँ। जब मैं 4 लेनिंग और नेशनल हाईवे के हवाले से बात करता हूँ, उनका शुक्रिया करता हूँ। कई चीजों के लिए मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का शुक्रिया करता हूँ। तो ये गलत होगा। मैं ये शुक्रिया किसी को खुश करने के लिए नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ ये अच्छी तमीज है। किसी ने जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा किया हो, मैं उनका शुक्रिया करूं। लेकिन ये जो मैंने कहा, ये मजाक, क्योंकि करा साहब ने भी थोड़ी सी हमें तुरस्त देने की कोशिश की, तो मैंने भी थोड़ा बहुत उसका जवाब दिया। हाउस में ये चलता रहता है, लेकिन इसमें आप इसको और संजीदगी से मत लीजिएगा। रिपब्लिक सर गुरसिमरन फ्रॉम रिपब्लिक। सर 2 छोटे से सवाल रहेंगे। सिर्फ पहला सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में आज आपने बजट पेश किया, जो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इनकम जम्मू कश्मीर की रहती है बजटरी नीड्स के अकॉर्डिंग रफली 25/4 जो है वो हम अपनी यहाँ से देते हैं, लेकिन मोस्टली डिपेंडेंस हमारी सेंटर पे ही रहती है, जो सेंटर से फंड आए। तो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ हम देख रहे हैं सर, जो प्लान किए हैं गवर्नमेंट ने, सो दैट कि जो यहाँ से पैसा जनरेट हो वो स्टेट के लिए यूज हो पाए। और सेकंड क्वेश्चन अभी पूछ लो सर बात। वो तो बजट के दौरान भी और अभी फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी आपसे कहा कि हमारी कोशिश है कि हमारे रेवेन्यूज जो है वो बढ़ जाएं, हमारे लॉसेस। अब आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम किया जा रहा है। 9% हमने अपने AT&C लॉसेस कम किए हैं, 16% हमने अपनी रेवेन्यू रियलाइजेशन जो है वो बढ़ा दी है। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे ताकि बिजली में जो हमारा नुकसान है उसको हम बिल्कुल क्लियर करें। इसके साथ साथ अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में 25-26 हमने 7 अपने लाइमस्टोन के जो माइनिंग के लिए दिए हैं ब्लॉक्स ई ऑक्शन के लिए, उसमें अच्छा खासा हमें रेवेन्यू मिल जाएगा। इंडस्ट्री और फले फूले, उससे हमें कमाई मिलेगी। हमारे जो छोटे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, MSME, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये रहती थी कि परमिशंस यूनिट्स अपने चालू करने के लिए उसमें बहुत वो दर के ठोकरें खाते थे। तो इस बार हमने सेल्फ सर्टिफिकेशन के बुनियाद पर उनसे कहा है कि 3 साल तक आपसे कोई ये नहीं मांगा जाएगा, आप सेल्फ सर्टिफिकेशन करिए और अपने यूनिट्स चालू करिए। हमें उम्मीद है कि उनके यूनिट्स चलें तो उससे भी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। लेकिन ये एक सही बात है कि जम्मू कश्मीर की डिपेंडेंस जो है सेंटर पे है, आगे जाके हम उसको कितना कम कर पाए ये हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन हमारी कोशिश जरूर रहेगी। वैसे दूसरा सवाल, आज 6 तारीख को आपने बजट पेश किया, लेकिन एक दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, रिपीट किया कि जो कश्मीर, आपके चैनल को बजट से कोई लेना देना नहीं। जो बजट पे आपने मुझसे सवाल पूछा, आपका चैनल दिखाएगा ही नहीं। आप किसी तरह मुझे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामले में जो है घुसा देना चाहते हो ताकि आपको कुछ मिले। ये बजट के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कभी बाहर जाके बात करेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले में आप मुझे उलझा लो, मैं भी उलझ जाऊंगा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। I request everyone to please limit your questions to budget. This side. This side. This side. Hello, I am Anil Bhatt from PTI. Jammu Kashmir has been actually the hydropower, but our economy gets almost nothing in terms of actual earnings from hydropower. Maybe going ahead, when all our projects come on stream, when all the power is ours, it's possible that hydropower will change the focus of the J&K's economy. But as you know, hydropower is incredibly capital intensive and all that investment is upfront. Therefore, trying to get hydropower generation, particular focus on agriculture, on horticulture, on improving productivity, on dairy. Whether you noticed or not, there is a huge move
towards growing our capacity in the dairy sector, both in terms of generating or producing more milk, but in terms of processing milk. I mean, when you sit and see the comparison between Jammu and handicrafts, things like that. Yeah, thank you. गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ समीक्षा वर्मा फ्रॉम यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। सर, आज आपने बजट में डेली वेजेस को लेकर बात की। पिछले साल भी बजट में डेली वेजेस की बात की गई थी, कमेटी बनाई गई थी उसको लेकर, लेकिन आपने बोला है कि फेज मैनर के तहत जो है डेली वेजेस को जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी। क्या उम्मीद लगाएं डेली वेजेस की, कब तक जो है ये रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो बनेगी? क्या अब डेली वेजेस की जो उम्मीद है वो पक्की होगी या नहीं? क्योंकि वही इनके साथ इंसाफ है और हम चाहते हैं कि एक ऐसे तरीके से हो कि कल को ये अदालत में ना फंसे। कल को ये अगर हम करना शुरू करें और कोई इस चीज को अदालत में ले जाए और सिलसिला रोक दें तो ये उन लोगों के साथ भी मुश्किल होगा और हमारे लिए भी। तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक वेल कंसिडर्ड तरीके से, जैसे मैंने कहा, एक फेज मैनर से इनका रेगुलराइजेशन का सिलसिला जो हमारी हुकूमत में हो जाएगा। उमर साहब, अजय जंडियाल, न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज से। आपने कहा कि एग्रीकल्चर और टूरिज्म ऐसे कई सेक्टर हैं जिससे जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। बेसिकली जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड आप बात करें या फिर टूरिज्म को लेकर, कई ऐसे इलाके हैं जहां तक शायद डिपार्टमेंट्स नहीं पहुंच पाते। अगर पहुंच पाते हैं तो जो लोग करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। ऐसी क्या पॉलिसी बनाए इस साल से या आगे बनाई जाएगी आपकी तरफ से, जिससे बेसिक जो लोग हैं, ऐसे इलाके जो अनटच्ड हैं, उन इलाकों तक आपके लोग पहुंच सके और लोग जो है इस इकोनॉमी को बदलने में आपके साथ जुड़ सकें? दूसरा सवाल एक और पूछूंगा, पहले आप चलिए। अब एक्सटेंशन एक्टिविटीज हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के तरफ से हर एरिया में किए जा रहे हैं। कृषि विकास केंद्र जो है पूरे जम्मू कश्मीर में फैले हुए हैं। फिजिकल प्रेजेंस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हर इलाके में है। लेकिन उस चीज के अलावा टेक्नोलॉजी पे एक बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि अब हर किसी के पास अब स्मार्टफोन है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, इसलिए बजट में आपने देखा होगा एक खास तवज्जो एग्रीकल्चर के इन सर्विसेज को किसान तक पहुंचाने का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किस तरह किया जाएगा इस साल, उसके लिए हमने जो है एक प्रोविजन बजट में रखा हुआ है। थैंक यू। दूसरा, आपने कल एक जिक्र किया था अपनी स्पीच, जम्मू कश्मीर से टेररिज्म की ओर जो युवा पहले शामिल होते थे उनमें कमी आई थी। हालांकि कल आपने कहा कि जो दिल्ली में हुआ उसको लेकर लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल इसमें होना चाहिए, और उसके लिए आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप सरकार में क्या करें, हम पॉलिटिसाइज नहीं करें तो बेहतर होगा।